اور اس کی 21ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہی قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر دبا کر اپنی نظر گزرا۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو جیسس۔ قرآن کی تعریف ہو۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو اس کے بڑے عظیم پیار کے لیے جو ایک دفعہ پھر ہمیں اپنے قدموں میں اپنے کلام کی باتیں سیکھنے کے لیے لے آیا۔ گزرے اتوار ہم نے اس سلسلہ کو شروع کیا تھا۔ مضمون پچھلے اتواروں نے شروع کیا تھا، کیا تھا جی؟ ہاں جی، بولیں گے سارے، اپنے بھائی پر غصہ نہ ہو، یہ مضمون تھا۔ اور پہلا حصہ ہم نے پچھلے اتوار سنا، اور آج ہم اسی مضمون کا دوسرا حصہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کو پچھلے میسج سے برکت ملی تھی؟ کتنے لوگوں نے اس میسج سے کچھ سیکھا تھا؟ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا جاؤں۔ پچھلے سنڈے ہم نے یسوع مسیح کی اس تعلیم کو، دو بیٹیاں یہاں پر بہت باتیں کرتی ہیں، اور میں اشارہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کو پتا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور وہ لوگوں کو پیچھے سے چھیڑتی بھی ہیں۔ مجھے بہت لوگوں نے شکایت کی ہے، پر اگر آج انہوں نے ایسا کیا تو میں ڈانٹوں گا ان کو سب کے سامنے، وہ خود ہی سمجھ جائے۔ کلام مقدس کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب اس کو ہمارے لیے آسان بنایا، شریعت کی باتوں کو جو بڑی گہری تھی ہمارے لیے آسان کیا، تو یسوع مسیح نے یہ باتیں اس طرح سے بیان کی کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم خون نہ کرنا، اور جو خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ میری بات اس بات سے لگے گی مختلف لیکن ہوگی وہی۔ ہاللیلویا، لگے گی مختلف لیکن ہوگی وہی۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہو تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور پھر ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا کہ کیسے غصہ قتل کی انتہا کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن آغاز غصے سے ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس میں آدم اور حوا کے دو بیٹے قائن اور حابل کی قربانی کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ دونوں خدا کے حضور میں قربانی لے کر گئے، لیکن حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قائن کی قربانی رد کر دی گئی۔ اسی بات کا غصہ گرج رکھتے ہوئے قائن غضبناک ہوا، اور غضب کا مطلب ہم نے دیکھا کہ
गुस्से से भर जाना। वो गजबनाक हुआ। खुदा ने उसे तंबीह की कि तू गजबनाक ना हो, नहीं तो गुनाह तेरे अंदर दुखा बैठा है, यानी कि तू इस गुस्से को कंट्रोल कर ले। लेकिन कायन ने गुस्से को कंट्रोल करने की बजाय अपना आप गुस्से के हवाले कर दिया, गजब के हवाले कर दिया, कहर के हवाले कर दिया, और इसका नतीजा यह निकला कि कायन ने अपने छोटे भाई हाबिल को, जो किसान था, जो चरवाहा था, उसे कत्ल कर दिया। फिर हमने यह भी सीखा कि दोनों की कुर्बानियों का मियार क्या था। एक खुदा के हुक्म के मुताबिक खून मिली हुई कुर्बानी थी, जिसके वसीला से कफारा का कानून बना, और दूसरे की कुर्बानी जो थी वो उसकी मौजूदा फैसिलिटीज थी, जो कुछ उसके पास था वो लेकर खुदा के हुजूर चला गया। ये तब नामंजूर था, लेकिन आप और मैं खुशकिस्मत है, आज हमारी हर तरह की कुर्बानी खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरती है। हालेलुया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त बर्रे और बछड़े और परिंदों का खून कुर्बानी में शामिल होना जरूरी था। आज मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने एक ही असली और अब्दी कुर्बानी, अपना बदन सलीब पर खींच दिया है। आज हम जो कुछ भी खुदा के हुजूर लाते हैं, उसमें ऑलरेडी यीशु मसीह का ब्लड शामिल होता है। हालेलुया। आज हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे कि यीशु मसीह ने जो कैटेगरीज बनाई, कत्ल की सजा अगलों से कहा गया था अदालत की सजा है, लेकिन यीशु मसीह ने आगाज ही अदालत की सजा से किया, क्योंकि यहूदियों की जो शरई अदालतें थी वो बड़ी उनकी जिंदगी में अहम थी। वो रोमन्स की अदालतों के पास नहीं जाते थे। अपने फैसलों को करवाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए वो रोमी अदालतों के पास नहीं जाते थे। वो अपनी शरई अदालतों को रजू करते थे, और उनकी सबसे छोटी जो अदालत होती थी उसको 3 लोगों पर मुश्तमिल एक काउंसिल बना दी जाती थी हर एक इबादत खाना में, ताकि जो केसेस हैं उनको वहीं पर निपटा दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू भाई पर गुस्सा करेगा तो अदालत का जो भी सजा कानून लिखा हुआ है वो तुझ पर वाजिब हो जाएगा। और इसके साथ एक और बात आपको बताता हूं, जब कायन ने हाबिल को कत्ल किया, खून हुआ, तो खुदा ने इस बात को समझा कि इस कौम को लिख कर देना पड़ेगा, इस कौम को इन रिटर्न देना पड़ेगा कि भाई तुम खून ना करना, कत्ल ना करना, क्योंकि किसी इंसान की जान लेना ये इस जमीन पर सबसे बड़ा जुर्म गिना जाता है। तब मेरे साथ देखिएगा कि ये कानून कब दिया गया कि तू खून ना करना। खरूज 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत निकालिएगा, ये मैं आपको इन रिटर्न खुदा ने जो लिख कर दे दिया वो बताना चाहता हूं। खरूज 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है, तू खून ना करना। ये वो 10 अहकाम है जो मूसा को कोहे सीना पर खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दी। हालेलुया। मैं एक बड़ी जबरदस्त आपको बरकत की बात बताना चाहता हूं। इस डायरी पर किसके हाथ से लिखा हुआ है? किसके हाथ से लिखा? तो ये किताब किसकी है फिर? मेरी किताब है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखा भाई, ये किताब मेरी है। लोग शक करते हैं कि ये किताब जो है ये खुदा की किताब नहीं है।
میں آج آپ کو اس بات کا پروف دیتا ہوں، ایمان سے بھر جائیے گا، خوشی سے بھر جائیے گا کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں خدا نے کچھ لکھا ہے، اور وہ پروف کیا ہے؟ کوہ سینا پر خدا نے موسیٰ کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے 10 حکم لکھ کر اس کے حوالے کر دیے کہ یہ قانون ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے قانون ہے، اور یہ اس پر زندگی گزاریں گے تو کبھی خطا نہیں کھائیں گے۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یہ 10 حکم خدا کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس کتاب میں موجود ہے، اور جس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی لکھائی کتاب کے اندر ہوتی ہے، کتاب بھی اسی کی ہوتی ہے، رائٹر بھی وہی ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا اس کتاب کا لکھوانے والا ہے۔ خدا پاک روح لوگوں کو تحریک دیتا تھا، ان کے دل میں ڈالتا تھا، اور خدا کا کلام لکھا جاتا۔ سوچیے بھائی، یہ قانون بن گیا کہ تو خون نہ کرنا۔ تو کیا خون نے بند ہو گئے؟ قانون بنا تو کیا ایسا ہو گیا کہ بالکل جی خونوں نے بند ہو گئے؟ نہیں، پھر بھی قانون کو توڑنے والے سر پھرے، غصے سے بھرے، غضب سے بھرے لوگ، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے موجود رہے، لیکن قانون بن گیا، کیونکہ قانون معاشرہ کے اندر اصلاح پیدا کرتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ جو اس قانون کو توڑتا تھا، یعنی کہ خدا کے کہے کو نہ مانتا تھا، اس کو کیا ملتی تھی؟ اس کو کیا ملتی تھی؟ آج بھی ایسا ہی ہے۔ پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کسی کی جان نہ لو، قتل نہ کرو، اور اگر قتل ہو گیا تو پھر اس کا جواب کیا ملے گا؟ سزا کا حقدار، عدالت میں کیس چلے گا، عدالت جو بھی دفعہ لگائے گی اور جو بھی قانون کے مطابق سزا دے گی وہ قانون ماننا پڑے گا۔ یسوع مسیح نے کہا، اگلوں سے کہا گیا تھا تو قتل نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، کیونکہ جو کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ عدالت کے اندر، قانون کے اندر لکھا ہوا تھا بھائی مار دو، جیسے اس نے مارا ہے ویسے اس کو مار دو۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یسوع مسیح کی ذات اقدس نے قانون کے اندر ترمیم کی ہے، اور ترمیم یہ کی ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں تو اپنے بھائی پر غصہ نہ کرنا، اور اگر غصہ کرے گا تو وہی سزا جو خون کی سزا، وہی سزا جو خون کی سزا، یعنی کہ عدالت کی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ میرے عزیز بھائی، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ آتا ہے نا؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ غصے سے بڑھتا ہے، اندروں اندر کی ہوتا ہے؟ اندروں اندر کی ہوتا ہے؟ بولو بھی کی ہوتا ہے؟ غصہ، گرج جڑا کی ہوتا ہے؟ پکتا رہتا ہے۔ برداشت، جنہوں سے کہتے ہیں میں بڑا ہی برداشت، اچھ میری برداشت تو آج برداشت تو باہر ہو گیا، تو جو اندر پکڑنے آتی ہوں آج میں کھاٹ دیتا ہے۔ آج میں نے وہ جو میرے اندر پک رہا تھا وہ کیا کیا ہے؟ نکال دیا ہے۔ اور کئی یاری جو ساڑھے منہ دے ٹنگن نکھدے نے تے کمال ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، اسے کہا اگر انسان کی پہچان کرنی ہے تو عام حالات میں نہیں، اس وقت اس کو دیکھو جب وہ غصے سے بھرا ہو، پھر اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، جو وہ اندر سے ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی کون سن رہا ہے، پھر انہوں اندر میں اپنا غصہ ذرا کاٹ دوں۔ تو یسوع نے کہا غصے کو کنٹرول کر لو، غصے کو قابو کر لو، کیونکہ یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ غصے میں رہیں گے، آپ کے اعصاب
पॉजिटिव सोचना बंद कर देंगे, आप नेगेटिव सोचते जाएंगे। अंदर गुस्सा ना, तो आप नेगेटिव सोचेंगे इंसानों के बारे में। ऐसे नहीं कहते, कहते आप जैसे हैं आपको दूसरे भी वैसे ही लगेंगे। आप अंदर से खुश है ना, आप खुश हैं, कमेटी निकल आई है, आप अंदर से खुश है, कोई लॉटरी निकल आई है, तो तानू सारी दुनिया ही हेलो बोलो भाई, तब सारे की नजर आएंगे। तो जे तुसी अंदरों सैड हो, परेशान हो, गुस्से के नाल भरे हो, तो तुहानू बाकी सारे भी सैड ही लगणगे, गुस्से ना भरे लगणगे। फिर तुहानू एवें लगेगा वो हसन दे ते मेरी गल करके ही हसन दे, है ना? ऐसे होंदा ना, मतलब परसों मैं जो भी इंज करना वा ना, ते ओ मैनू वेख के आखदा, भावें वो बेचारे आप ही हसदे होण, अपनी किसी गल ते हसदे। होता क्या है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर नेगेटिव सोच है, मेरे अंदर शक है, तो मैं दूजे नू की समझण दिया वा, ये भी उंजदा ही है। लेकिन जिधर मैं खुश हूं उधर नहीं लगेगा सारे यार भजे फिरदे ने, खुशी खुशी है। सो जब आपके अंदर गुस्सा होगा तो आपकी सोचने की सलाहियत नेगेटिव हो जाएगी, आप बुरा ही सोचेंगे, आपको बुरा ही नजर आएगा, आपको सारे के सारे चोर नजर आएंगे। क्यों? कि आपके अपने अंदर गलत सोच है। तो यीशु ने कहा पहले मामले को कंट्रोल कर लो। आइए दूसरे स्टेप पर चले। यीशु मसीह ने कहा और जो कोई अपने भाई को पागल कहे वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। अरे जो कोई अपने भाई को पागल कहे, ये गुस्से का जो ढक्कन खुलता है, सबसे पहले मुंह से ऐसी ही बातें निकलती, तू पागल हो गया, है ना? क्या हो गया तू पागल हो गया। हालांकि पागल वो नहीं हुआ था, पागल तो मैं हुआ था। जो बोल रहा है वो पागल हुआ हुआ ना, उसके मुंह से बुरी बातें निकल रही हैं। अपने भाई को पागल कह रहा है, वो पागल हुआ हुआ है, लेकिन उसकी उंगली की तरह कर रहा तू पागल हो गया। और यीशु मसीह ने कहा अगर गुस्से को कंट्रोल कर लोगे तो उत्ते नहीं जाओगे, लेकिन अगर गुस्सा तुम्हारे अंदर पलता रहेगा तो पहले नंबर पर ढक्कन खुलते साथ ही क्या मुंह से निकलेगा? तू की हो गया, पागल हो गया। और यीशु ने कहा अगर तू अपने भाई को पागल कहता है तो फिर सदरे अदालत का की सजा के लायक होगा। पागल क्या होता है? दीवाना, अहमक, बेवकूफ। और जो हैकल थी, पहले आपको बताया अदालत जो है वो 3 लोगों पर, 3 जजों पर मुश्तमिल होती थी, वो हर इबादत खानों में मौजूद होती थी। लेकिन जो मेन हैकल थी उसमें सरदार काहिन समेत 70 और बुजुर्ग मौजूद होते थे। ये सदरे अदालत कहलाती थी और यीशु मसीह को इसी सदरे अदालत ने डेथ वारंट जारी किए थे। आइए जरा बाइबल देखें, मत्ती 26वां बाब देखें जरा, मत्ती 26वां बाब, ताकि आपको सदरे अदालत का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 57वीं आयत देखें, मत्ती 26वां बाब और उसकी 57वीं आयत में लिखा है और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकीर और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदरे अदालत वाले यीशु को मारने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे थे। अरे ये वो सदरे अदालत है जिसने यीशु को कत्ल करने का, यीशु को सलीब चढ़ाने का ऑर्डर जारी किया। और यीशु ने कहा अपनी तालीम में मत्ती 5वां बाब के अंदर कि अगर कोई अपने भाई को पागल कहेगा तो फिर
सजा। कौन सी? सदर अदालत की सजा। अब कौन से बात सुनिएगा, आप कहते होंगे भाई साहब आज हमारी लाइफ में इसका क्या ताल्लुक है, आप क्यों ये कलाम सुना रहे हैं? मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज मैं और आप यीशु मसीह की इस तालीम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो हमारी जिंदगियां बड़ी आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर गुस्सा हमारी लाइफ के अंदर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, आप अपनी लाइफ को बड़ा हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे, आपका दिल बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, आपके अंदर एक मस्बत सोच पैदा हो जाएगी, आप हर बात में फायदा अपना और दूसरों का ढूंढेंगे। लेकिन नेगेटिव सोच के साथ अपना भी नुकसान तो दूसरा का भी नुकसान। तीसरी बात आइए, यीशु मसीह ने पहला स्टेप गुस्सा, दूसरा स्टेप पागल और तीसरा स्टेप जो है वो है 24वीं आयत में, बल्कि 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग जहन्नम का सजावार होगा। ये अहमक क्या है? अहमक मूर्ख, बेवकूफ, नादान, ना समझ। कई दफा सी दुनिया की सलाह पता की, कौन सी बात सुनिएगा, और ये बड़ा खतरनाक तरीका है। मैं रात एक फैमिली में था, वो अपने बच्चे को मेरे सामने ही बहुत डांट रहे थे, शदीद डांट रहे थे, और उसे बार बार एक ही लफ्ज मियां बीवी कह रहे थे। एक कुछ नहीं काट सकता, छोटा सा 12 साल का बच्चा, लेकिन उनके घर का बड़ा बच्चा था, एक कुछ नहीं काट सकता, एक कप्पा है, एक पैसे जाया करते हैं। और मैंने एकदम से उस बच्चे की तरफ देखा, उस 12 साल के बच्चे की आंखें रेड हो गई और वो मुंह नीचे करके उसकी आंसू बहने शुरू हो गए। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मैंने दुआ की, बाहर आ गया। मैं उसके बाप को कहा मेरे सब तरह बाहर आ। मैंने बाहर जाकर उसको ये बात समझाई कि यार वो 12 साल का बच्चा है, सिर्फ तेरे घर का बड़ा बच्चा है, लेकिन वो सिर्फ 12 साल का है, उसकी एज सिर्फ 12 साल है। तू उसे कोई बड़ा, कोई 20-22 साल का लड़का ना समझ, सिर्फ 12 साल है। और हर बच्चे की सीखने पढ़ने की ताकत एक जैसी नहीं होती। अगर तेरे बाकी के बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं और अगर वो नहीं पढ़ रहा तो नो प्रॉब्लम, उसका हौसला बढ़ा। और मैंने सिर्फ उसे एक ही बात कही, मैं कहा प्यो दी थापी बड़ी होती है, बात तो बहुत बड़ी बात होती है। निकम्मा भी हो ना, निकम्मा भी हो, ये बहुत बड़ा साइंसदान है। मैं आपको उसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद मुझे उसका नाम भूल रहा है। ये बल्ब किसने बनाया था, तुमको पता है? एडिसन। एडिसन से पढ़ा नहीं जाता था, उसको हर स्कूल निकाल देता था। आई थिंक सो एडिसन है ना, वो हर स्कूल ही काट देता था। उन्होंने कहता ये निकम्मा है। आखिरी स्कूल थे ना, उन्होंने काट देता। जब उसको घर लेकर आए ना, तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा, उसने कहा मुझे क्यों निकाला है? उसने कहा बेटा, तेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे जो है वो, और तेरा लेवल बहुत बड़ा है, तू बहुत ऊंचे लेवल का बच्चा है, और टीचर कहता है कि तू उनके साथ नहीं पढ़ सकता। लो जी, वो सारी उम्र इस गलत फहमी में रहा कि मेरा लेवल बहुत ऊंचा पर रहा, ऊंचा नहीं सी नीवा सी। लेकिन उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाया, उसने कहा पुत्र वो तेरे वगैरह नहीं है, तू बहुत ऊंचा है। और उस बंदे ने सैकड़ों के हिसाब से जायदाद कर दी बड़े होकर, क्योंकि सिर्फ एक उसकी मां ने उसे हौसला दिया, हौसला दिया करो तेरे यार। लिखकर पौलत असि करते ही देते हैं, दुरुस्त बात पर डांटिए, दुरुस्त बात पर उनको जरूर तबीह कीजिए, लेकिन हौसला जरूर बढ़ाइए, हौसला कम ना कीजिए। हौसला कम करेंगे क्या होगा? वो उनकी शख्सियत बर्बाद हो जाएगी। और मैंने उस बाप को एक ही बात कही, मैं कहा अगर तू अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है तो वो जैसा भी है उसके सर पर हाथ पेट कर कह पुत्र कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेगा, नो प्रॉब्लम, मैं मना, तो मैं क्या देखी ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी यही कहा,
यीशु मसीह ने कहा यार गुस्सा करना छोड़ दो, ये अपने अंदर ग्रज रखना छोड़ दो, अपने अंदर दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रखना छोड़ दो। और अगर मैं आपको आज सुबह गारंटी के साथ ये बात कहता हूं, अगर खानदान एक दूसरे के लिए गुस्सा रखना छोड़ दे तो यकीन जानिए आपके खानदानी रुबाबत दोबारा से बहाल हो जाएंगे। आप जो कहते फिरते ना और जी हुण वो प्यार नहीं रह गए, हुण वो गल्लां नहीं रह गईयां, आप गुस्सा करना छोड़ दे, गल्लां फिर पुरानियां ही हो जाएंगी। बोला हालेलुया। ग्रज की है, उन्हें टीवी ले लिया तो मेरे को छोटा है, वो छोटा टीवी वेचते ग्रज अंदर गुस्से ना भरे ने, ते गुस्सा यहां तो निकलन दिया है। दसो किधर बच्चा दे या बीवी दे या अच्छा बंदे लेना आया अब असी तो कभी कीता ही नहीं गुस्सा है ना, आप कर रहे हैं सुके सारे यहां निकलता गुस्सा इधर, अब तुसी तो कुछ करते ही नहीं जे ओ देखो उधर देखो की हो रहा है। कम जिस हालत में है उस हालत में खुश रहिए, बोलो हालेलुया। जिस हाल में है उसका शुक्रिया अदा करें, बोले हालेलुया। और गुस्से की हालत को अपने अंदर से खत्म कीजिए, आप देखेंगे आपको बरकत मिलेगी। और यीशु यही कह रहा है गुस्सा ना कर, क्योंकि जब तू गुस्सा करता है फिर तू दूसरे स्टेप पर जाता है, और दूसरा स्टेप की है अपने भाई को तू पागल कहता है, तीसरे स्टेप पर तू उसे अहमक कहता है, और अहमक होने की सजा बड़ी खतरनाक है, क्योंकि तू पीठ पर चला गया है, तू अपने एंड पर चला गया है। और एंड पे क्या होगा, तू यहां से कोई शहर चुक के उसे सिर से मार देगा, यहां से तू उधर गल दब देगा, यहां तेरे को बंदूक है तो गोली मार देगा, क्योंकि एंड हो गया ना, तेरी बर्दाश्त का एंड हो गया और तूने उसकी जान ले ली। तुझे जमीन पर भी कत्ल की सजा शायद मौत ही मिलेगी, और अगर तू आसमान पर जाएगा तो वहां पर भी जहन्नम इंतजार कर रहा है, क्योंकि तूने जमीन पर एक बंदे की जान ले ली। हाँ जी क्यों भाई जे असी शुरू से कंट्रोल कर लेते, गुस्सा ना कर दे तो क्या होता था, अब ठीक हो जाना था। आइए को हवाला देखिए, इमसाल 30वां बाब देखिए, बड़ा मेरी बड़ी पसंदीदा आयत है ये, इमसाल 30वां बाब और उसकी 33वीं आयत। Glory, hallelujah, praise the Lord। इमसाल 30वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यकीनन, यकीनन का मतलब होता है कंफर्म, 100%, क्योंकि यकीनन दूध बिलोने से मक्खन निकलता है और नाक मरोड़ने से लहू, इसी तरह कहर भड़काने से फसाद पैदा होता है, बर्पा होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कलाम में सारा कुछ लिखा है। दो मिसालें बड़ी आम है, पर मेरी किहड़ियां भैणां ने दुध ढिड़के ने अपनी जिंदगी दे विच, चुको हत्थ कर जिन्हां ने ढिड़के ने, बजी नानी ने दुध ढिड़कीए की निकलता जी, मक्खन निकल रहा है। अरे ये हकीकत है, ये लिखी हुई बात है कि दूध जब बिलोएंगे, उन्होंने रिड़कांगे तो की निकलेगा, मक्खन निकलेगा। तो एक दूसरी बात, इसको तजर्बा ना कीजिएगा, जो मैं दूसरी बात बताने लगा। कलाम ने कहा है जे नक फड़ के मडोड़ दोगे ना किसी का, तो की निकलेगा, क्या निकलेगा, खून निकलेगा। ये बड़ी खास बात है, ये बड़ी हड्डी नाजुक होती है। आपको पता है किसी को वो पंच लगे ना, तो अगर यहां पे लगे तो फर्क खून निकलना शुरू हो जाता है। मोटे पे मार लो कोई खून नहीं निकलता, लाख मार लो कोई खून नहीं निकलेगा, लेकिन जो नक से मर जाए तो की निकलता। तो कलाम कहता है जे किसी का नक फड़ के ना मरोड़ दोगे ना तो की निकलेगा। दो हकीकतें, पहली बात दूध बिलोने से
दुध रिड़कन नाल की निकलेगा? मक्खन। ते नक मरोड़न नाल की निकलेगा? नक मरोड़न नाल खून तो पहले नक ही निकलेगा। नाक मरोड़ने से ब्लड निकलता है। और ये दोनों अगर हकीकत है तो कंफर्म बात है कि फसाद उसी सूरत में आपकी जिंदगी, आपके घराने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके शहर, आपके मुल्क में होगा जब आपके अंदर कहर होगा और आप उसे भड़काएंगे, आप उसे जोश देंगे, आप उसको अपने अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो कहर भड़काने से फसाद ही बर्पा होगा, सुलह कभी नहीं होगी। ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ बंदा कहता यार सुलह होने लगी सी, होनी सुलह होने लगी सी, की होया? क्या हुआ भाई? ये होते होते रह गई है नहीं? क्यों दोस्तों? क्यों मेरी बहनों? है नहीं? अपने साथ अगर गुस्से से भरे हुए शख्स को लेकर जाएंगे किसी जगह पर, आप कोई सुलह कराने के लिए जा रहे हैं, कोई आपसी मेल मिलाप तस्फिया करवाने के लिए जा रहे हैं, तो नरम मिजाज आदमियों को साथ लेकर जाए, जिनके अंदर बर्दाश्त की ताकत हो, जो अपने अंदर सुलह की तासीर रखते हो, उनको साथ लेकर जाए। गुस्से वाले लोग कई प्रेशर पाने लिए गुस्से वाले लोग लड़ाई लै जाते हैं, वो एक लड़ाई दियां दो लड़ाइयां हो जाती हैं। आपके तजर्बे में होगा, क्यों बेटे ऐसे ही है? वो एक लड़ाई दी कितनी हो जाती है? दो। लाओ बैठे रहो। सो गुस्सा आना चाहिए। मैं आगे आपको बता रहा हूं, आगे मैं आपको इस बात से आगाह करने वाला हूं कि गुस्सा एक नेचुरल, हमारे अंदर एक खुदा ने एहसास डाला हुआ है, ये नेचुरल है, ये कुदरती है और ये होना चाहिए। लेकिन गुस्से में फर्क है। मैं आपको इस गुस्से के बारे में सिखाने वाला हूं। गेट रेडी मेरे भाई, मेरी बहन, आपका गुस्सा अगर जायज है, अगर आपका गुस्सा वाकई ही खुदा के कलाम के मुताबिक, तो यकीन जानिए आपके गुस्से से इस्लाह होगी, आपके गुस्से से खानदान जुड़ेंगे, आपके गुस्से से बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी और वो दुरुस्ती की तरफ आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका गुस्सा जो है वही दुरुस्त नहीं है, तो फिर आपके गुस्से से खराबी पैदा होगी और कुछ नहीं होगा। दो तरह के गुस्से हैं, अपने पास नोट फरमा लीजिए। एक है रास्ती का गुस्सा। क्या है जी? बोलेंगे, नीचे ऊपर बोलेंगे। क्या है जी? रास्ती का। इसकी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। मरकस 30वां बाब उसकी 30वीं आयत में आ जाए मेरे साथ। हालेलुया। मरकस 30वां बाब उसकी 30वीं आयत से। शाबाश। कोई तेज हवाले निकालने वाला कोई बंदा, को बेटी को बेटा आगे बैठा करे, उसको माइक हम दे देंगे। 30वां बाब उसकी 30वीं आयत में यूं लिखा है, मरकस 30वां बाब की 30वीं आयत। बल्कि ऊपर से पहली ऐसे है, और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए
اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا. یہ کیا ہے؟ جائز غصہ ہے. کہ میں ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, تعلیم کا سوال ہے, ان کو آنا چاہیے کہ کسی کی جان بچانا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں سبق کے دن, یا میں آپ کو ویسے ہی سوال پوچھتا ہوں کہ کسی کی جان بچانا اچھا ہے یا کسی کا قتل کرنا؟ آپ کا خیال کیا ہوگا؟ جان بچانا. سیدھا سوال تو سیدھا جواب, لیکن وہ کی نے یسوع نے چاروں طرف ان پر غصے سے نگاہ کی کہ ان کی روحانی حالت بڑی ہی پتلی ہے, یہ بہت ہی کمزور ہے, ان کو اس سوال کا جواب نہیں آ رہا. تو یسوع نے ان کی طرف چاروں طرف غصے سے نگاہ کی. ایک اور غصے کی ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا. یوحنا 2 یہ راستی کے غصے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوحنا 2 اس کی 15ویں آیت, بلکہ اس کو بھی 13ویں آیت سے دیکھتے ہیں. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا. اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو, یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے. یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ غصہ کر رہے ہیں. لیکن یہ راستی کا غصہ ہے, یہ درست غصہ ہے, یہ غلط بات کے خلاف غصہ ہے, یہ جائز غصہ ہے. اور غصے کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم سب کے اندر موجود ہے اور ہونی چاہیے. غصہ آنا چاہیے لیکن جائز باتوں پر, درست باتوں پر. جہاں ہمیں غصہ دکھانے کی ضرورت ہے وہاں غصہ دکھائیے. اسی ہوتے وہاں نے جتنے نہیں ضرورت, کوئی بات نہیں. کئی جگہوں پر ہم درگزر کر سکتے ہیں, کئی جگہوں پر ہم چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اسی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بہ جاتے ہیں. اے گل ہونے نہیں ہو سکتی, حالانکہ ہو سکتی ہے, حالانکہ ہو جائے گی, تیرے بغیر بھی ہو جائے گی, لیکن تو نے یہ غصہ کا اظہار غلط جگہ پر کیا, غلط غصہ غلط جگہ پر کیا. اور دوسرا ہے شیطانی غصہ. اگر ہم پہلے غصے کو دیکھیں, یسوع مسیح سوال پوچھ کر جواب نہ ملنے پر غصہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یسوع مسیح ہیکل کی بے حرمتی دیکھ کر غصے میں آتے ہیں اور رسیوں کا کوڑا بنا کے سارے جانوروں کو اور جانور بیچنے والوں کی نقدی کو بکھیر دیتے ہیں. یہ غصہ ہے. کبھی ہمیں غصہ آیا؟ کبھی اسی کوڑا بنا کے تے چوکاں وچ کھلوتے منڈیاں نوں کہا چلو گرجے دے اندر چلو. کبھی تاش کھیڈن والے نوں اسی کیا اجے اج بھی قبرستان چ لگے نے, کبھی اسی کوڑا بنا کے گئے, کوڑا تو چھڈو سی ہاتھ بھی جوڑ کے کری کہ بابا جی آؤ گرجے چلیے, کیونکہ پتا بابے نے اگوں ہم جائز غصہ نہیں کرتے تے نجائز غصہ پتا کی ایتھے بیٹھ کے گڑ 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 کر دیتے ہیں. ایتھے بہت خراب نے, خراب نے تو جا کے صحیح کر. ایک دوسرے کے خلاف یہاں پر بیٹھتے بولتے رہتے. میں اکثر کہتا ہوں اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے بولیے, میرے سامنے اگر نہیں ہے, پادری صاحب عبادت میں یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے, پادری صاحب آپ کے اندر یہ بات غلط ہے, یہ درست ہونی چاہیے. پتہ چلے کوئی غصہ کر لیتے ہیں, ہے نا. تے ساڈا غصہ کتنے نکلتا ہے جدو اسی کتے چار دن ڈال کے بہ جاتے ہیں. پادری صاحب کے بات چھڈو کر رہن دو, پادری صاحب تو پینجا ہی لاتے ہے نا. وہ بھائی غصہ تو میرے اوپر نکالو نا آ کے, مجھے پتا لگے یار اے گل شاید میرے اندر ٹھیک نہیں ہے. گرج اپنے اندر ہی رکھتے ہو تو میرا کی کر جاتے ہو. وہ پنجابی کی مثال ہے نا, ہڈی بلے کی
ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਨਾੜੇਗੀ। ਚਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। जितना मर्जी बोल रहा करो मेरे खिलाफ, मेरे क्या खिलाफ? खातमों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। खातमों के खिलाफ ये अपना मुंह बंद रखिए, नो प्रॉब्लम, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप किसी बड़े खातम को हाँ यार फलां काम करता है, यार उसे कोई नहीं बड़ी गड्ढे गड्डी के जाके तो देती है, तेरे अब्बे ने देती है, तो तेनू खाना टैक्स आने हैं, तो देखो गड्डी है, देखो नो प्रॉब्लम, तेनू की प्रॉब्लम है? जरा कोई चंगे कपड़े पा लो, परेशानी सानू हो जाती है। निकालिए नेगेटिव सोचों को, निकालिए। गोरा पता क्यों स्कूल से? गोरा कहता जो मर्जी जिदे को जो है मर्जी, अपनी मर्जी खाए पिए, मैनू की, मैं घर अपने, मेरे घर जो है मैं ओदा बादशाह हां। सानू अपने काम ते घर ते चीजां नालों ज्यादा दूजियां दी फिक्र होंदी। वो पान की दे, वो खान की दे, ਉਹਦੇ हाथ च की है? हेलो हेलो चर्च, क्या ख्याल है? ये शुरू कहां से होता है? गुस्से से। ये शुरू कहां से होता है? गुस्से से। यीशु ने कहा गुस्सा करना है तो फिर जायज करो, आओ मेरे तरफ, रस्सियां बनो ते आओ जरा ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤਮ ਨੂੰ ਰਗੜਾਇਆ ਵੀ ਲਾਇਆ। और ये फेसबुक पे जो देख रहे हैं हमारी क्रिश्चियों की यही हालत है। खातमों के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, उनको बताएं, उनके पास जाए, नाले उन्होंने घर जाके चाह पियो, नाले उन्होंने दसो भाई साहब ऐ गल थोड़ी सही गल है, अच्छा है। मेरा ख्याल है हर खातम आपको अप्रिशिएट करेगा, वेरी गुड यार, थैंक यू, तूने मुझे बताया है ना। मैं आपकी खराबी आपको आपके घरों में आकर बताता हूँ, पता आपको, हंसते हंसते गल्ला गल्ला से समझा देता हूं कि पुत्र कम ठीक कर लो। और यही बेहतर है, अंदर रख के सड़दे भुजदे रहने नालों बेहतर है दसो अगले को यार। और अगर आप से आगे कोई निकल गया है तो उससे भी हसद जलन करने की बजाय उधर जितनी मेहनत करके बहाओ। और अगर मेहनत करने के बावजूद आपको ना मिले फिर मेरे पास आइए, मैं आपको कलाम में से बताऊंगा कि कहां कमी है, मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। खुदा जरूर आपकी मेहनत का अजर आपको देगा। आमीन आमीन हालेलुया। उच्ची गली बोलो हालेलुया हालेलुया। तो गुस्सा होना नेचुरल है, ये खुदा ने हमारे अंदर रखा है और इसको हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन गुस्सा राइट जगह पर राइट चीजों के लिए होना चाहिए, ना कि आपका गुस्सा गलत चीजों पर निकल रहा हो, ये गलत है और ये आपके खानदानों को बरकत नहीं बल्कि मुसीबत में डाल देगा। कायन का गुस्सा जायज नहीं था, ना जायज था, इसलिए क्या वजूद में आया? उसके भाई का कत्ल। और आज हमारे साथ भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। मत्ती की झील में आइए जरा जल्दी से, दोबारा ही इसी हवाला को देखेंगे 18वें बाब में आइए, मत्ती 18वां बाब उसकी 15वीं आयत, और ये आखिरी वाला है। मत्ती 18वां बाब और उसकी ये गुस्से को कैसे कन्वर्जन मिली है ये हमने देखना। मत्ती 18वां बाब उसकी 15वीं आयत। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। क्या मैंने आपको पहले कुछ चीजें बताई है। सारे के सामने सलाह करने की ना कोशिश करा करो, गुस्सा ना करने की कोशिश, साइड पे रह जाओ, आराम से समझाओ, आराम से बताइए, ठीक है। यहां पर यीशु मसीह ने हमें बताया अगर तेरे भाई ने तेरा गुनाह किया है तो खिलवत में ले जा, तन्हाई में अलग ले जा, उसे बातचीत कर, और अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। आमीन आमीन। इसका मतलब तेरा गुस्सा दुरुस्त था और तूने साइड पर ले जाकर उसे समझाया, वो समझ गया तो समझो तूने अपने भाई को जीत लिया, पा लिया। ते जे वही गल तू ते चार दोस्तां च बैठ के करे ते तेरा भरा जिहड़ा तेरे नाल प्यार करदा है वो भी हसद च चला जाएगा कि इन्हें मैनू समझाया नहीं, इन्हें मैनू जलील कीता, इन्हें मैनू सारे दे सामने
धक्का कर देता है। सो खिलवत में लेकर जाकर समझा पहली बार, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात दो तीन गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। और अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार, यानी कि पहला तरीका क्या है, कल्ले समझाओ। दूसरा तरीका की है, मोतबर आदमी, बुजुर्ग आदमी, खानदान के या चर्च के लेकर फिर भी साइड में बैठना है, तुम समझाना भरा ए गल ठीक कर ले। और अगर वो फिर भी ना करे तो तीसरा एक और 17वीं आयत है, और वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से क्या है, और मगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे ये कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए तो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप के तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां हूं। ये दो की जमा होने, दो की ज़हनियत मिलने, दोनों के ख्याल मिलने की बात है। यानी कि अगर आप अपने भाई से सुलह करना चाहते हैं तो उसका पहला तरीका यह है कि उसे खिलवत में ले जाकर क्या कर, समझा। मध्या में ठीक, अगर नहीं मिलता तो फिर दूसरा तरीका है, दो तीन आदमी साथ ले ले, मोतबर बंदे ले ले। अगर वो फिर भी नहीं मानता फिर तू कलीसिया को कह, पास्टर साहब को कह। और अगर वो तीसरे मरहले में भी कहता नहीं तो फिर तेरा कसूर नहीं, फिर ओदा कसूर है, फिर उन्होंने सलाम ले लाए। लेकिन 21वीं आयत में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। उस वक्त पतरस ने आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं। हाँ जी भाजी, जरा गौर से, मेरी बहन, मेरे भाई, गौर से जरा बात सुनिए। हम माफ कर करके तंग पड़ जाते हैं, हम माफ कर करके उकता जाते हैं, कहते हैं एदी ते आदत बन गई है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? यीशु मसीह से पतरस ने पूछा कि जे मेरा भरा करदा ही नहीं, वो बंदा ही ना बने, वो मेरी गलती करदा ही रहे तो मैं की करा? तो यीशु ने क्या कहा? क्या 7 बार? पतरस ने कहा 7 बार तक माफ कर दा। उस तो बाद तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर गुस्से की कमी है और माफ करने वाली तासीर है तो फिर आप माफ करते ही रहेंगे, डोंट वरी, माफ करते ही रहेंगे, डोंट वरी। आपका माफी का रवैया है, आप माफ करें, सजा देना आसमान के खुदा का काम है। जब उसने कहा है अदालत, सदर अदालत और जहन्नम मैं दूंगा, तो फिर मुझे और आपको अपने आप को मुनसुब बनाने की बजाय, गुस्सा और ग्रज रखने की बजाय अपने अंदर माफी के जज्बे को रखो। क्योंकि यीशु ने हमें सलीब पर सिखा दिया, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए आज अपने दिलों के अंदर अपने आप को गुस्से के लिए, ग्रज के लिए, नफरत के लिए नहीं, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार करें। क्योंकि यीशु ने कहा 7 के 70 बार, 7 सदा 49, 490 आ रही। तेरा मतलब है होल लाइफ अगर तू माफ करने वाला है तो तेरे मुंह में माफी ही हो, तेरा भाई तेरे लिए आखिरकार जरूर बदल जाएगा। नहीं बदलेगा तो आसमान का खुदा तुझे माफ करने का अजर जरूर अता करेगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और यीशु मसीह